سلطان محمد خان، آغا حسن، احمد گڑک پاشا اور محمود پاشا جیسے سالاروں کے ہمراہ ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر فوج تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ہر صوبے میں نئی فوجی بھرتی کے لیے پیغام بھیجے۔ ہر صوبے کا حکمران بیلر بیگ کہلاتا تھا۔ بیگ اور پاشا ایک ہی طرز کے القابات تھے۔ ایسے فوجی سردار جن کے نیزے کے سرے کے ساتھ گھوڑے کی دم جیسا ایک پھندنا لگا ہوتا تھا وہ بیگ یا پاشا کہلاتے۔ یہ عثمانیوں کا فوجی نشان تھا۔ یہ لوگ ان جاگیروں کے سردار تھے جن کو فوجی خدمات کے صلہ میں زمینیں دی گئی تھیں، اور ان کے فرائض میں شامل تھا کہ جنگ کے موقع پر مسلح ہو کر لشکر میں شامل ہوں۔ ان جاگیروں کے لوگ ایسے موقعوں پر اپنے اپنے سرداروں کے علم کے نیچے جمع ہو جاتے تھے۔ علم کو ترکی زبان میں سنجق کہتے ہیں، اور چونکہ سنجق ہر علاقے کا الگ ہوتا تھا اس لیے دھیرے دھیرے لوگ صوبوں اور علاقوں کو سنجق کہنے لگے۔ ہر سنجق یعنی فوجی پرچم تلے بیگ یعنی بیلر بیگ کے بہت سے ماتحت ہوا کرتے، اور ہر بیگ کا دستہ 400 سواروں پر مشتمل ہوتا۔ سلطان نے اس عظیم حملہ کے لیے اپنی یورپی اور ایشیائی مقبوضات سے باضابطہ طور پر 1 لاکھ کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ رضاکار اس کے علاوہ تھے جو ہر جنگ کے موقع پر بطور خود اپنی خدمات پیش کرتے اور جن کا معاوضہ صرف مال غنیمت تھا۔ ان دونوں قسم کی افواج سے زیادہ شان و شوکت اور عظمت و شہرت ینیچری کی تھی، جس کا سپہ سالار آغا حسن تھا۔ ایک طرف اگر آغا حسن سلطان کی فوج کے لیے ایک مایہ ناز اور بہادر سالار تھا، تو دوسری طرف احمد گڑک پاشا اور محمود پاشا صوبہ دار فوج کے جنگجو جنریل تھے۔ بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے سلطان نے ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا، جس میں کم از کم 180 جہاز شامل ہوتے۔ چھوٹی بڑی کشتیوں کی تعداد الگ تھی جو پہلے سے عثمانی بحریہ کا حصہ تھیں۔ سلطان محمد خان ایک باصلاحیت نوجوان تھا جس کی خداداد قابلیت کے جوہر رزم و بزم دونوں جگہ یکساں طور پر نمایاں تھے۔ اے دین کے مقام پر اس نے بہترین اساتذہ سے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ علوم و فنون کی تحصیل کی تھی۔ وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبانوں پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ سلطان محمد کی نظر نہ صرف دنیا کی تاریخ پر تھی بلکہ وہ کرۂ ارض کے جغرافیے سے بھی پوری واقفیت رکھتا تھا۔ وہ ایک بلند پایا شاعر اور شعر و سخن کا بہت بڑا رسیا تھا۔ سلطان محمد خان کو اپنے وقت کے جید عالم اور فقیہ ملا عبد الرحمن جامی کے ساتھ براہ راست نسبت تھی، اور وہ ہندوستان کے خواجہ جہاں کی عقیدت میں بھی پیش رہتا تھا۔ سلطان کی صوبیداری افواج کے سالار محمود پاشا بھی سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا۔ قسطنطنیہ پر حملے کا ارادہ کیا تو سلطان نے انتہائی گہری نظر کے ساتھ پلوٹار کی مشہور و معروف تصنیف جو یونان اور روم کے تذکروں پر مشتمل تھی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے سکندر اعظم، قسطنطینہ اول اور تھیوڈوسس کے حالات زندگی کا مطالعہ کر کے قسطنطنیہ کے طویل ماضی کو ازبر کر لیا۔ ان دنوں اس خطے کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیائے کوچک میں امیر کرمانیہ رازی برضا خاموش تھا۔ البانیہ میں سلطان محمد خان کے ساتھ پل کر جوان ہونے والا سکندر بیگ مرتد ہو کر قابض تھا، لیکن سلطان ابھی تک ضدی سکندر بیگ کو نہ چھیڑنا چاہتا تھا۔ ولیشیا کا سربراہ ولاد ایک ظالم اور کینہ پرور شخص تھا اور قیدیوں کے جسموں میں میخیں ٹھونک کر ہلاک کر دیا کرتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سلطان کے مقابلے پر آتا۔ ہمت تھی تو صرف شاہ ہنگری ہونیاڈے کے بازوؤں میں، لیکن سلطان نے اس کے ساتھ 3 سال کی صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ہونیاڈے سلطان کے باپ مراد خان ثانی کے ہاتھوں ایک معاہدہ شکنی کا مزہ چکھ چکا تھا، چنانچہ دوسری بار معاہدہ توڑنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب صرف موریا ہی ایسا علاقہ تھا جہاں سے قسطنطنیہ کے لیے ہر وقت کمک مہیا کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ سلطان کی ایک ماہر فوج موریا والوں کا راستہ روکنے کے لیے موریا کی جانب چل دی۔ چنانچہ تمام تیاریوں کا خاکہ مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد سلطان نے ایک حتمی اجلاس طلب کر کے قسطنطنیہ پر حملے کے فیصلے کو آخری شکل دے دی۔ یہ اجلاس بھی بڑے بڑے سالاروں، سرداروں اور عمائدین سلطنت پر مشتمل تھا۔ اس اجلاس میں قاسم بن ہشام کسی کو نظر نہ آیا کیونکہ وہ وادی تھریس عبور کرنے والا تھا۔ اجلاس مسلسل 3 روز تک جاری رہا اور سلطان نے حملے کی حتمی شکل کے بعد سلطنت کے لیے نئے احکامات اور قوانین بھی جاری کیے۔ ارخان کے زمانے میں دولت عثمانیہ کے وزیر اعظم علاء الدین نے فوجی اصطلاحات جاری کی تھیں
जिस की तकमील मुराद खान अव्वल के ज़माने में हुई। लेकिन निज़ाम हुकूमत के लिए कोई दस्तूर सुल्तान मोहम्मद खान के ज़माने तक मुरतब ना हुआ था। सुल्तान ने आईने सल्तनत को बाज़ाब्ता तौर पर तरतीब दिया और उसका कानून नामा सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा दस्तूर बन गया। सुल्तान ने आईन सल्तनत पेश करते वक्त अपने खिताब के दौरान सल्तनत को एक खैमे से तशबीह दी और कहा कि सल्तनत का ये खैमा 4 सतूनों पर कायम होगा। नंबर 1 वुज़राए सल्तनत, नंबर 2 क़ुज़ाते अस्कर, नंबर 3 दफ्तरदार खाजिन, नंबर 4 निशानजी मोतमिद सल्तनत इस खैमे के सतून हैं। उसने खैमे के दरवाजे को बाबे आली का नाम दिया, जो रहती दुनिया तक हुकूमत उस्मानिया का नाम बन गया। उसने 4 वुज़राए सल्तनत मुकर्रर किए, जिनका सदर वज़ीर आज़म था, जो सल्तनत के तमाम ओहदेदारों का अफसर आला था और उसके पास हुकूमत की मोहर रहा करती थी। वज़ीर आज़म भी सुल्तान की तरह अपने महल में दरबार तलब कर सकता था। क़ुज़ाते अस्कर का ताल्लुक उलमा की जमात से होता था और एक क़ुज़ातुल अस्करी यूरोपीय अदालतों जबकि एक क़ुज़ातुल अस्करी एशियाई अदालतों के लिए सुल्तान ने मुकर्रर किया। ख्वाजा मुफ्ती और काजी भी तबक़ा उलमा से लिए गए। सुल्तान ने हुकूमत की मजलिस हलो अक़्द का नाम दीवान ही रहने दिया, जबकि दीवान में निशिस्तों की तादाद बढ़ा दी। सुल्तान ने नए दस्तूर में खारजी आगा और दाखिली आगा के ओहदे मुकर्रर किए। खारजी आगा वो फौजी हुक्काम थे जिनके सपुर्द सूबों की हुकूमत थी, जबकि दाखिली आगा दरबारी ओहदों पर मामूर थे। सुल्तान ने आगाओं के मजीद ओहदे भी तजवीज़ किए। मसलन कापू आगा गोरे ख्वाजा सराओं का अफसर, कीज़लर आगा हबशी ख्वाजा सराओं का अफसर, बोस्तानजी माशी बागबानों का अफसर, चाउशबाशी हुकूमत के कासिदों का अफसर वगैरह वगैरह मुकर्रर किए। सुल्तान मोहम्मद खान ने सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने आईने सल्तनत में तालीमी और तदरीसी उमूर पर दी। पिछले अहद में तमाम मदरसे मजहबी होते थे, अगरचे उनमें और उलूम भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन तुर्कों का सरिश्ता तालीम पॉलिटिकल हैसियत का हामिल था और वो सल्तनत के लायक ओहदेदार पैदा करता था। मौलाना शबली। सुल्तान का इजलास 3 रोज तक जारी रहा। तीसरे रोज सुल्तान ने इख्तितामी तकरीर करते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ अराकीन सल्तनत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमने सल्तनत के निज़ाम को उलमाए मिल्लत और उमाए दीन सल्तनत के मशवरे से पहले की निस्बत बहुत बेहतर बना दिया है। अब हम पूरे इत्मीनान के साथ उस फातेह लश्कर का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें शामिल मुसलमान मुजाहिदों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में मग़फ़रत की खबर सुनाई है। जब से रूमी बादशाह कुस्तुंतनिया ने 3री सदी ईस्वी में ईसाई मजहब कबूल करके इस शहर को अपना पाया तख्त बनाया था, उसी रोज से इसका नाम कुस्तुंतनिया हो गया था। ये शहर अरसा दराज तक बाज़ंतीनी सल्तनत और ईसाई मजहब दोनों का अहम तरीन मरकज रहा है। हजरत अंस रजी अल्लाहु अन्हो की खाला उम्मे हराम बिनते मल्हान रजी अल्लाहु अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई रिश्तेदार थी। एक रोज आप इनके घर सोए हुए थे कि अचानक बेदार हुए तो आपके चेहरे मुबारक पर तबस्सुम था। हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाहु अन्हा ने तबस्सुम की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि मुझे ख्वाब में अपनी उम्मत के वो लोग दिखाए गए जो जिहाद के लिए समंदर की फौजों पर इस तरह सफर करेंगे जैसे तख्त पर बादशाह बैठे हों। हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी इन लोगों में शामिल फरमा लें। आपने दुआ फरमा दी और दोबारा महवे ख्वाब हो गए। थोड़ी देर बाद फिर बेदार हुए और दोबारा चेहरे मुबारक तबस्सुम से खुला हुआ था। हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाहु अन्हा ने दोबारा वजह पूछी तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर यानी रूम के शहर कुस्तुंतनिया पर जिहाद करेगा, उसकी मग़फ़रत की बशारत दी गई है। हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाहु अन्हा ने दोबारा दुआ की दरखास्त की, लेकिन आपने फरमाया नहीं, तुम पहले लश्कर में शामिल हो। मुअज़्ज़िज़ अराकीन सल्तनत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों बशारतें इस तरह पूरी हुईं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कब्रिस पर हमला किया। ये तारीख़ इस्लाम की पहली बहरी मुहिम थी और इसमें हजरत उम्मे हराम अपने शौहर हजरत अबादा बिन सामिद के साथ लश्कर में शामिल हुई। ये जंगी मुहिम इस लिहाज से कामयाब रही कि अहले कब्रस में मुसलमानों से सुलह कर ली और जब मुसलमान वापस होने लगे तो हजरत उम्मे हराम एक घोड़े पर से गिरकर जाम शहादत नोश फरमा गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बशारत की तकमील थी। बशारत का दूसरा हिस्सा मुजाहिदीन कुस्तुंतनिया से मुतालिक था।
चुनांचे कुस्तुंतनिया पर जिहाद करने के लिए हजरत मुआविया का बेटा यजीद भी शामिल था और जय्यद सहाबी रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। ये मुसलमानों की तरफ से कुस्तुंतनिया का पहला मुहासरा था जो काफी मुद्दत तक जारी रहा। और हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह इस मुहासरे के दौरान बीमार होकर शहीद हुए और इस अजीम शहर की फसील के नीचे मदफून हुए। लेकिन ये लश्कर कुस्तुंतनिया को फतह ना कर सका। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। मोहतरम आराकीर सल्तनत, याद रखिए कि सिर्फ ये बिशारत ही नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है जिसमें सिर्फ कुस्तुंतनिया पर जिहाद करने वालों की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, बल्कि उस शहर को फतह करने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है। हजरत बिश्र बिन सहीम रजी अल्लाह एक हदीस की रवायत है, लतुफ्तहन्नल कुस्तुंतनिया फलनिअमल अमीरन वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश। तर्जुमा, तुम जरूर कुस्तुंतनिया फतह कर लोगे, बस बेहतर अमीर इसका अमीर होगा और बेहतर लश्कर वो लश्कर होगा। मुस्नद इमाम अहमद रहमाउल्लाह। चुनाचे इस हदीस में बयान करदा सआदत के हुसूल के लिए बहुत से मुसलमान हुक्मरानों ने कुस्तुंतनिया पर हमला किया, जिनमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमाहुल्लाह, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मेहदी अब्बासी और खलीफा हारूनुर रशीद वगैरह शामिल हैं। लेकिन कोई भी इस शहर को फतह ना कर सका। सल्तनत उस्मानिया गालिबन दस्ते कुदरत ने कायम ही इसलिए की थी कि वो बाबरकत लश्कर वजूद में आ सके, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर लश्कर कहकर पुकारा है। हमारे दादा सुल्तान बायजीद यल्दरम ने 1402 में कुस्तुंतनिया का पूरी कुव्वत के साथ मुहासरा किया। करीब था कि वो इस शहर को फतह कर लेते कि तैमूर लंग ने एशिया कोचक पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें मुहासरा उठाना पड़ा। ये आज से 50 साल पहले का वाकया है और अहलियाने दरबार में बाज बुजुर्गान सल्तनत को याद भी होगा। उसके बाद हमारे आबा में से हमारे वालिद मोहतरम तक सब ने इस शहर का मुहासरा किया, लेकिन सब नाकाम रहे। मुअज़्ज़िज़ अमायदीन सल्तनत, आज हम भी उसी लश्कर में शामिल होने की सआदत हासिल कर रहे हैं जिसका क़याम हमारे इरादों पर मुनहसर है। कुस्तुंतनिया ऐसे मकाम पर वाक़े है जब तक ये शहर फतह नहीं हो जाता इस्लामी सल्तनत को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये कदीम शहर तस्खीर कर लिया गया उसके बाद कोई भी कैसर दोबारा पैदा ना हो सकेगा, क्योंकि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, इज़ा हलका कैसर फला कैसर बादहू। तर्जुमा, जब कैसर हलाक हो गया तो फिर कोई कैसर पैदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दरबार सल्तनत में सुल्तान मोहम्मद खान की इख्तितामी तकरीर थी। अहलियाने दरबार अपने सुल्तान की इस्लामी मालूमात देखकर हैरान रह गए। उन्हें तवक्को न थी कि कल तक 2 मरतबा नाकाम होने वाला नौअमर सुल्तान अब यूं आलिम व फाजिल और साहिब दानिश हो चुका था। ये था सुल्तान मोहम्मद खान, जो अब दुनिया के अजीम शहर कुस्तुंतनिया को फतह करने के लिए रख्ते सफ़र बांधने वाला था। दुनिया की तारीख एक नई करवट लेने वाली थी और मुस्लिम फतुहात की तकमील के साथ यूरोप की नशते सानिया का नया दौर शुरू होने वाला था। मुक़द्दस बाप, आपकी कलील वक्त के लिए इस रिफाकत को मैं अपने लिए सादत समझता हूँ। मैं गुज़श्ता 25 साल से इसी मकाम पर कश्तगिरानी कर रहा हूँ और ज़िंदगी में बड़े बड़े राहबों की बातें सुनी हैं, लेकिन आपके साथ किया गया ये सफ़र मुझे उम्र भर याद रहेगा। ये उस बूढ़े मल्लाह की आवाज़ थी जो कासिम बिन हिशाम को लेकर आबनाए बास्फोरस के यूरोपी साहिल की जानिब जा रहा था। कासिम आज कई रोज़ से सफ़र में था। वो सुल्तान बायजीद यल्दरम के बनाए हुए अनादोल हिसार के बिल्कुल सामने आबनाए बास्फोरस के यूरोपी साहिल की जानिब बढ़ रहा था। उसने ईसाई राहबों का लिबास पहन रखा था और गले में सलीब के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह भी एक सुनहरी जंजीर के साथ लटका रखी थी। उसके सर पर पादरियों वाली टोपी और बदन पर भारी भरकम जुब्बा था। कासिम एक माहिर जासूस था। यही वजह थी कि उसने इंतहाई कामयाबी के साथ ये हुलिया इख्तियार कर रखा था। लेकिन एक हैरत की बात थी कि कासिम ने मगरबी यूरोप के पादरियों जैसा लिबास पहन रखा था, जो रोमन कैथोलिक मजहब के साथ वाबस्ता थे और जिनका मरकजी कलीसा रूम के शहर में पापाए रूम के मातहत चलता था।
रोमन कैथोलिक मजहब ईसाइयों के लातीनी फिरके का मजहब था और ये फिरका मगरबी यूरोप के अलावा अहले हंगरी और कोहे बल्कान के बाज़ बाशिंदों पर मुश्तमिल था। इसके बरक्स ईसाइयों का कदीम फिरका द होली ऑर्थोडॉक्स चर्च था, जिसका मरकजी शहर कस्तंतीनिया था और जो ईसाइयत का यूनानी फिरका समझा जाता था। उस वक्त तक प्रोटेस्टेंट फिरका पैदा ना हुआ था और प्रोटेस्टेंट फिरके के बानी जर्मन मार्टिन लूथर के ईजल बिन में पैदा होने में अभी 30 साल बाकी थे। आबनाए बॉस्फोरस, जिसमें इस वक्त कासिम की कश्ती नीलगों पानियों पर रवां दवां थी, 18 मील लंबी एक समुद्री पट्टी का नाम थी। इस आबनाए के शिमाली सिरे पर बहरे बारबरा और जुनूबी सिरे पर बहरे असवद वाक़े है। इसके मशरक़ी सिरे पर एशिया और मगरबी सिरे पर यूरोप, दो अजीम बर्रे आज़म वाक़े हैं। दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान आबनाए बॉस्फोरस की चौड़ाई सबसे ज़्यादा बहरे मारमरा की तरफ से है, जहां इसका पाट 3.25 मील है, और सबसे कम चौड़ाई बहरे असवद के रुख पर है, जहां इसका पाट कुल 800 गज रह गया है। इसकी गहराई मुख्तलिफ जगहों पर 40 से लेकर 32 गज तक है। कासिम ने बहुत थोड़े वक्त में मल्लाह से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली। वो कश्ती में बैठा आबनाए बॉस्फोरस के अंदर उस्मानी फारिस के हैबतनाक हुक्मरान किसरा की वो बेपनाह फौज खैमाजन नजर आई, जिसने कैसर रोम को मुसलसल शिकस्तें देकर कुस्तुनतुनिया में महसूर कर दिया था। लेकिन फिर कुरान हकीम की वो हैरत अंदीज पेशनगोई पूरी हुई कि रोमी अनकरीब मगलूब होने के बाद गालिब आ जाएंगे, और फिर किसरा की फौजों को यहां से भागना पड़ा। उसे दूर, बहुत दूर किसी शहर के छोटे छोटे निशानात नजर आए तो उसने मल्लाह से पूछा, वो देखिए, वो क्या है? लगता है यहां से 4-5 मील पर कोई शहर है। जी हां, यही तो कुस्तुनतुनिया है जहां आप जा रहे हैं। यही शहर तो है जिसकी वजह से खुदावंद यसू मसीह का दीन जिंदा है। खुदावंद इसे हर बला से महफूज रखे। आप तो रोमा के पादरी हैं, हमारे चर्च को तो आप नहीं मानते हैं ना? बूढ़ा मल्लाह भी दोनों ईसाई फिरकों के बारे में जानता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी दुआ करता हूं कि खुदावंद इस शहर को महफूज हाथों में दे दे। कासिम की बात सुनकर मल्लाह चौंक उठा और किसी अनजाने खतरे से उसका चेहरा जर्द होने लगा। ये आप क्या रहे हैं? महफूज हाथों में दे देने की दुआ तो शहंशाह के हक में नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं हमारे कैसर के हाथ महफूज नहीं। सुना है मुसलमानों का नया सुल्तान कुस्तुनतुनिया पर हमला करना चाहता है। मुल्लाह की बात से कासिम का कलेजा कांप गया। उसे एकदम अपनी हैसियत याद आई। वो एक जासूस है और वो संभल कर बैठ गया। लेकिन उसे हैरत थी कि सुल्तानी हमले की खबर इस कदर पेशस वक्त यहाँ कैसे पहुंच गई थी। उसने मल्लाह को मजीद टटोलने के लिए कहा, लेकिन ये खबर तो बड़ी खतरनाक है। सुना है मुसलमानों का नया सुल्तान बड़ा जंगजू और बहादुर है। जी हाँ, उसने यहाँ सामने ही कुस्तुनतुनिया से 5 मील जुनूब की जानिब एक अजीम शान किला तामीर करना शुरू कर दिया है। आजकल तो हमारी आबनाए में से यूरोपी जहाज गुजरते हुए घबराते हैं। मुझे तो लगता है कोई खतरनाक जंग होने वाली है। देखिए मुकद्दस बाप, किस कदर खून खलाबा होगा। दोनों तरफ के इंसान मरेंगे। हालांकि यसू मसीह अमन और मोहब्बत के पैगाम्बर थे। बूढ़े मल्लाह ने हसरत भरी आवाज में कहा। कासिम को ऐसे लगा जैसे मल्लाह अपने मजहब से बेजार हो या फिर अपने मजहबी पेशवाओं से। कुछ देर बाद कासिम ने मल्लाह से सवाल किया, तो फिर क्या सुल्तानी हमले के खिलाफ शहंशाह ने भी कोई तदबीर सोच रखी है? शहंशाह क्या तदबीर सोचेगा? कुस्तुनतुनिया में कोई ऐसा शख्स ही नहीं रहा जो बचाव की कोई तदबीर सोच सके। लोग कहते हैं कैसर ने खुद नए सुल्तान को छेड़ा है। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? बूढ़ा मल्लाह चिड़चिड़ा भी हो रहा था, लेकिन उसे कुछ खास मालूम ही न था। कासिम के लिए ये सफर बहुत दिलचस्प रहा। आबनाए में इक्का दुक्का कश्तियां और भी रवां दवां थीं। वो फिर तस्वुरात की दुनिया में बहने लगा। उसे कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर उस्मानी तोपों के गोले बरसते दिखाई दिए और खलीजत राबिया के किनारे अरबी नस्ल के घोड़े दौड़ते हुए नजर आए। कुछ ही देर बाद कश्ती साहिल से आ लगी। वो अपने सीने में बहुत अजीब एहसास लेकर कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर उतरा। साहिल पर और भी कई कश्तियां अपने मुसाफिरों के इंतजार में हिचकोले खा रही थीं। कासिम को महसूस हुआ कि मछेरों की कोई बस्ती थी जो साहिल पर उतरते ही उसकी निगाहों के सामने इंजीर के दरख्तों के दरमियान फैली हुई थी। मौसम अभी तक सर्द था और समंदर की लहरें अभी तक गुज़श्ता सर्दियों का तसव्वुर करके बुरी तरह कपकपा रही थीं। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों की वजह से खलीज तराबिया का पूरा इलाका सर्द था। यहाँ गर्मी थोड़े वक्त के लिए और कम पड़ती थी।
یہ دوپہر کے قریب رہا ہوگا جب قاسم باسفورس کی یورپی ساحل کر مچھیروں کی بستی کے قریب اترا۔ اسے مچھیروں کے بچے باسفورس کے ساحل پر لپکتے نظر آئے۔ اب اس کے بائیں طرف 3 میل کے فاصلے پر قسطنطنیہ کا شہر تھا اور دائیں طرف بحر اسود کی طرف جاتا ہوا باسفورس کا طویل ویران کنارہ۔ اس نے باسفورس کی یورپی ساحل پر کھڑے ہو کر ایشیائی کنارہ پر نگاہ ڈالی تو اسے بایزید یلدرم کا بنایا ہوا انادول حصار صاف دکھائی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حصار کے بالکل سامنے اسی کنارے پر جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا سلطان محمد خان ایک قلعہ تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساحل سے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ اسے نئے قلعے کی تعمیر کے آثار نظر آئیں، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ ابھی قلعے کی متعین کردہ جگہ سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں سلطان محمد خان کا یہاں قلعہ بنانا بہت بڑی جرت کا کام تھا، کیونکہ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔ یہ سپاہی اگرچہ قسطنطین کے ماتحت تھے لیکن اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے بدتمیز اور ہت چھٹ واقع ہوئے تھے۔ قاسم اگر یہاں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تو اسے شمال کی طرف 3 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ قسطنطنیہ اس لیے نہ پہنچ سکتا کہ اسی جانب فے قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ متصل آبنائے باسفورس کی ایک اور شاخ نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ ایک پتلی اور لمبی سمندری پانی کی شاخ ہے جسے ایک چھوٹی سی مستطیل خلیج بھی کہا جا سکتا ہے، جو باسفورس سے مغربی سمت خشکی کی طرف نکل آتی ہے اور اس کی شکل سینگ سے مشابہ ہے۔ کسی نے قسطنطنیہ کی فصیل سے طلوع آفتاب کے وقت اسے دیکھا تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے اسے پانی کا رنگ سنہرا نظر آیا۔ تب سے اسے سنہرا سینگ کہا جانے لگا، یعنی گولڈن ہارن۔ فارسی بولنے والوں نے اسے شاخ زریں کا نام دیا۔ یہ شہر کی جنوبی فصیل کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی کافی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ مسلط شہر اپنی 2 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ تیسری اور اکلوتے سمت خشکی کی جانب تھی، لیکن اس طرف تہ در تہ فصیل بنی ہوئی تھی۔ قاسم دیر تک قسطنطنیہ کی جانب سر اٹھائے دیکھتا رہا۔ اسے یہاں سے برج غلاطہ کسی میخ کی طرح نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مچھیروں کے بچے دوڑتے ہوئے قاسم کے قریب نکل آئے۔ یہ عیسائی بچے تھے اور راہب کے لباس کو پہچانتے تھے۔ وہ مقدس باپ کہتے ہوئے قاسم کے گرد جمع ہونے لگے۔ قاسم کو ابھی قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے اس ساحل پر موجود اپنے سپاہیوں اور معماروں کو تلاش کرنا تھا اور ان کے کام کا جائزہ لینا تھا۔ چنانچہ قاسم نے مچھیروں کی بستی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گرد جمع ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ پادریوں والی شفقت سے پیش آنے لگا۔ بچے اگرچہ میلے کچیلے تھے لیکن ان کی رنگت یونانیوں جیسی صاف تھی۔ یہ مچھیرے بھی دراصل یونانیوں الاصل تھے۔ قاسم نے بچوں کو اپنے سامان سے کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر دیں تو وہ اس پر نثار ہو گئے۔ اب بچے قاسم کی ہر بات کا اشتیاق سے بھرپور لہجے میں جواب دے رہے تھے۔ قاسم نے ایک تیز ترار بچے سے پوچھا، کیوں بیٹا، یہاں قریب ہی کچھ سپاہی آئے ہوئے ہیں، شاید غیر ملکی سپاہی ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کس طرف ہیں؟ جی ہاں، وہ سب کے سب سروں پر امامے باندھے ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں گول ہیں، ایسے۔ بچے نے ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کی مخصوص ہلالی تلوار کی ہوا میں شکل بنائی تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ سلطان کے سپاہی اس ساحل پر قلعہ بنانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ابھی قاسم کچھ اور پوچھ نہیں والا تھا کہ 2 بچے بیک وقت بے صبری کے ساتھ بول اٹھے، جی ہاں، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لائے ہیں، وہ اس طرف ہیں۔ بچوں نے بحر اسود کے ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بچوں نے قاسم کو بتایا کہ امالیوں والے سپاہیوں اور یونانی سپاہیوں کے درمیان نوک جھوک اور اکا دکا لگائی کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور اسے یقین ہوا کہ قلعہ کی تعمیر دا سربراہ مصلح الدین آغا اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے۔ قاسم نے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد بچوں سے کہا، چلو تمہاری بستی میں چلتے ہیں، میں تمہیں یسوع کا قصہ سناؤں گا۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے اور قاسم کے آگے آگے بھاگنے لگے۔ اب قاسم مچھیروں کی بستی میں جا رہا تھا۔ یہ 30-35 گھروں پر مشتمل ایک بستی تھی۔ زیادہ تر مرد اپنے اپنے جال سمندر میں ڈالے آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں دور سے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں میں کھانے پکانے کے کام میں مصروف تھیں، البتہ لڑکیاں بالیاں باہر کھلے ساحل پر دھوپ میں کھیل رہی تھیں۔
कुछ दोशीज़ाएं एक तरफ बैठी चमकती धूप में अपने अपने बाल खोले उनमें कुछ तलाश कर रही थीं। वो इस काम में एक दूसरे का हाथ भी बटा रही थीं और ज़रा सी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। जो ही उन दोशीज़ाओं की नज़र कासिम पर पड़ी, उनके क़हक़हे वहीं रुक गए और वो एक दूसरे को छोड़कर उठ खड़ी हुईं। लड़कियां बालियां भी अजनबी की तरफ भागीं और दोशीज़ाएं भी उस नौजवान पादरी के नज़दीक आ गईं। कासिम का कदो कामद और सुर्ख सफ़ेद चेहरा देखकर मछेरन दोशीज़ाओं की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इतना कड़ेल और खूबसूरत राहिब उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुक़द्दस बाप को सलाम किया और सर झुकाकर धीरे धीरे हंसने लगीं। कासिम ने लड़कियों की निगाहों में अपने लिए सताइश के जज्बात देख लिए थे। उसने एक मासूम मुस्कुराहट फेंकते हुए राहिबाना अंदाज में कहा, बच्चों सलामत रहो, लंबी उम्र पाओ और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह मोहब्बत को पसंद करते हैं। मोहब्बत के लफ्ज़ पर दोशीज़ाएं कसमसाईं। एक तेज़ तर्राह लड़की ने झट कासिम से सवाल कर दिया, फादर, क्या आपने मोहब्बत की है कभी किसी के साथ? मैंने पूरी इंसानियत के साथ मोहब्बत की है। मेरे दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं बच्चों। मेरे दिल में सबके लिए मोहब्बत है, आपके लिए भी। कासिम के आखिरी अल्फाज पर एक शर्मीली सी मुछेरन दोशीज़ा ने पहली बार पलकें उठाकर उसे देखा। कासिम की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि ये लड़की दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है। कासिम अभी उसी जगह मौजूद था कि एक बूढ़ा मछेरा कंधे पर चप्पू डाले इसी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। बच्चे बोले, सरदार आ रहा है। लड़कियां एक तरफ हटकर खड़ी हो गईं। मछेरों का सरदार कासिम के करीब आया और कासिम से अदब के साथ मिला। मुक़द्दस बाप, आपने हमारी बस्ती में आकर हमें बहुत शर्फ बख्शा है। यहाँ बहुत कम फादर आते हैं। हम मछेरे हैं ना, इसलिए यहाँ हमने खुद एक झोंपड़ी को चर्च बना रखा है। आप आइए, आपके आने से पहली बार हमारे चर्च में एक मुक़द्दस राहिब दाखिल होगा। कासिम ने बूढ़े सरदार को फादरों वाली शफकत दी और उसके साथ चल पड़ा। शाम तक पूरी बस्ती इसी धुन में लग गई कि मुक़द्दस बाप ज्यादा से ज्यादा देर उनके यहाँ ठहरे। कासिम को अंदाजा न था कि मछेरों की बस्ती में उसे इस कदर पजीराई मिलेगी। उसे डर था कि मछेरे, जो कि यकीनन यूनानी कलीसा के साथ वाबस्ता होंगे, उसके रोमन कैथोलिक होने पर अच्छा न जानेंगे। उसने रोमन कैथोलिक लिबास किसी और मकसद के लिए पहना था, लेकिन मछेरों को जब मालूम हुआ कि फादर रोमा से आया है तो वो और भी ज्यादा बिचने लगे। वो अनपढ़ गैर मजहबी लोग थे और उन्हें मजहबी फिरकों की ज्यादा खबर ना थी। अब यहाँ रहना कासिम के लिए कोई मसला न था। चुनाचे उसने मछेरों की बस्ती में रहने का फैसला किया ताकि वो कुस्तुनतुनिया की समंदरी अतराफ का गहरी नज़र से जायजा लेकर सुल्तान को आगाह कर सके। वो यहीं से कुस्तुनतुनिया जाना चाहता था, लेकिन इस तरफ से कुस्तुनतुनिया जाने के लिए उसे रास्ते में पड़ने वाले गोल्डन हान को कश्ती के जरिए अबूर करना पड़ता, और अगर वो खुश्की के रास्ते कुस्तुनतुनिया दाखिल होना चाहता तो उसे गोल्डन हान के ऊपर से होकर शहर के बड़े दरवाजे सेंट रोमाने से दाखिल होना पड़ता। चुनाचे कासिम मछेरों की बस्ती में रह पड़ा। शर्मीली लड़की जो दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी, बस्ती के सरदार की बेटी थी। उसका नाम रोज़स था और बाकी लड़कियां उसे रोज़ी कहकर पुकारती थीं। बस्ती की लड़कियां और बच्चे कासिम से इंजील का सबक पढ़ने लगे और उसके एक एक इशारे के गुरविदा हो गए। रोज़ी जानती थी कि कासिम एक राहिब है और वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कासिम को देखते ही खुदा जाने क्यों नए नए सपने देखने लगी थी। ये सपने तो वो पहले से ही देखती थी। वो देखती थी कि उसके ख्वाबों का शहजादा किसी न किसी रोज उसे लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन उसने ये ना सोचा था कि वो शहजादा एक राहिब के रूप में आएगा। वो दिन भर किसी न किसी बहाने कासिम की खिदमत में हाजिर रहती। सादी सी, मासूम सी और शर्मीली सी वो मछीरन तीसरे दिन ही दिलो जान हार बैठी और कासिम से कह दिया, फादर, आप इस उम्र में एक राहिब की हैसियत से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको सिपाही होना चाहिए था। कासिम मुस्कुरा रहा था। इस मासूम मछीरन को क्या मालूम कि जिस नौजवान पर वो मर मिटी है वो फिल हकीकत सिपाही ही है। कासिम अपनी आमद के दूसरे रोज ही आबनाए बास्फोरस के उस साहिल का गोल्डन हॉर्न तक जाकर जायजा ले आया था। वो जुनूब की तरफ भी गया था और उसने दूर से मुसल्लहुद्दीन आगा के मेमारों को सुल्तानी कले का काम करते भी देखा था। अप्रैल के इख्तिताम तक कले की बुनियादें चुनवाई जा चुकी थीं।
सुल्तान ने इस किले का नाम रूमिली हिसार तजवीज़ किया था। अब कासिम गोल्डन हॉर्न का मज़ीद जायज़ा लेना चाहता था। वो फिल हकीकत उस जंजीर को नज़दीक से देखना चाहता था जो गोल्डन हॉर्न के दहाने पर समंदर में लटकाई गई थी। गोल्डन हॉर्न एक छोटी सी खलीज थी जो कुस्तुनतुनिया के पहलू में फसील के साथ लेटी थी। ये छोटी सी खलीज आबनाए बास्फोरस से निकलकर यूरोपी साहिल में दाखिल हो गई। आमतौर पर छोटे जहाज और कश्तियां जो आबनाए में चलती हैं, इस खलीज में भी दाखिल हो जाती हैं। गोल्डन हॉर्न की जानिब से कुस्तुनतुनिया की यूरोपी तिजारत होती थी। इसी जानिब शहर का एक और दरवाज़ा था जो खलीज में खुलता था। इसी खलीज के दहाने पर शहर की हिफाजत के लिए लोहे की एक बहुत बड़ी जंजीर यूं बांधी गई थी कि आम हालात में वो ढीली होकर समंदर के अंदर लटकी रहती, और जब कभी गोल्डन हॉर्न में कश्तियों और जहाज़ों को रोकना मकसूद होता तो जंजीर खींचकर गोल्डन हॉर्न का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता। रोज़े अव्वल से कोई भी फातेह कुस्तुनतुनिया को इसलिए फतह न कर सका था कि ये जंजीर खलीज के दहाने पर उसका रास्ता रोक लेती। कासिम इसी जंजीर को नज़दीक से देखना चाहता था। आज मछेरों की बस्ती में उसे 5वां रोज था और आज सुबह ही एक ऐसा वाक़या पेश आ गया था जिसने कासिम को किसी कदर चौंका दिया था। जब अलसुबह यूनानी सिपाहियों पर मुश्तमिल कैसरी फौज का एक दस्ता मछेरों की बस्ती में आ निकला था। सिपाहियों को जूं ही इल्म हुआ कि बस्ती में नया पादरी आया है, वो उस पादरी से मिलने के लिए चले आए, लेकिन जूं ही उनकी नज़र कासिम के मजहबी लिबास पर पड़ी, वो ठिठक गए। उनके सिपे सलार ने कासिम के जुब्बे पर बने पापाए रोम के निशान को देखकर कासिम से पूछा, मुकद्दस बाप, ये क्या है? कासिम ने अपने चेहरे से कोई परेशानी जाहिर न होने दी और बड़ी बेनियाजी से कहा, ये अजीम बाप पोप का अता करदा निशान है। लेकिन कासिम जवाबन दस्ता सलार की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा था, देखिए जी, अब ये वक्त आ गया है कि रोमन कैथलिक मजहब के पादरी यूनानी कलीसा के इलाके में दमदनाते फिर रहे हैं। ये सब शहनशाह की कमजोरी है। शहनशाह तो चाहता है कि ईसाइयों के ये दोनों फिरके मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन देखना, हम यूनानी कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। दरअसल कासिम की हैरत बजा थी, क्योंकि उसे शहनशाह की कोशिशों के बारे में कुछ खबर न थी। हकीकत ये थी कि कैसर उसी रोज से चौकना हो गया था जब उस्मानी फौज के कुछ सिपाही आबनाए बास्फोरस के यूरोपी साहिल पर आन उतरे थे, और शहनशाह ने उसी रोज से कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया था।